So I am going to cover the different points related to this topic, that is introduction of IC engine, what is a heat engine, how heat engines are classified, basic components and nomenclatures of engine. After then, classification of IC engine. Heat engines are classified on two different ways: internal combustion engine and external combustion engine. So in this subject, we will discuss in detail about the working principle, construction and analysis of internal combustion engines only, not external combustion engine. And four-stroke SI engine and CI engine, its working principle and its comparison. Then we will also discuss two-stroke engines working principle, construction and its application. After then, comparison of four-stroke and two-stroke engines, and comparison between SI and CI engine, and efficiency of an engine. So these are the different points to be covered as introductory lecture of this IC engine. So as you know that in 1876, four-stroke engine based on Otto cycle, that is known as petrol engine, was developed by German engineer Nicholas Otto. By the name of this inventor, it is known as Otto cycle. So Otto cycle is also known as petrol engine. In 1892, diesel engine was developed by another German engineer, Rudolf Diesel. So by his name, it is known as diesel engine. So an engine is a device which transforms one form of the energy into another form. Normally, most of the engine converts thermal energy into mechanical work, and therefore they are called heat engines because heat is involved. Because this fuel contains chemical energy, so that chemical energy is first converted in the form of the heat energy. So this heat energy is converted in the form of the mechanical work by using the engine. Now, based on whether the combustion of fuel takes place inside the engine or outside, an engine is classified as internal combustion engine, that is IC engine, and external combustion engine, that is known as EC engine. So these are the two broad classification of heat engine. Heat engine is classified into ways. One is known as internal combustion engine and another one is known as external combustion engine. Now the basic definition of heat engine is that heat engine is a device which transfers the chemical energy of the fuel into thermal energy and utilizes this thermal energy to perform useful work. Thus, thermal energy is converted to mechanical energy in a heat engine. Now, I already told you that it is broadly classified into two categories: internal combustion engine and external combustion engine. Now, let us discuss the basic difference between internal combustion engine and external combustion engine. So, in case of internal combustion engine, means IC engine, fuel combustion takes place inside the cylinder, and the working fluid and the combustible product, means after combustion of the fuel, the combustible product is produced, and that is the working fluid. But in case of external combustion engine, fuel combustion takes place outside the cylinder. Okay, so in case of internal combustion engine, the combustion of fuel takes place inside the cylinder, but in external combustion engine, it is takes place outside the system. Means working fluid is not the combustible product in case of external combustion engine. Now, second one is the IC engine is compact in size and it is more efficient. External combustion engine large in size and is less efficient. IC engines are low in initial cost, but external combustion engines are more in initial cost. In IC engine, the fuel used are costlier, just like petrol or diesels are used in IC engine. But in case of external combustion engine, fuels are cheaper, like coal. Now, internal combustion engines are more suitable for mobile applications,
but external combustion engines are not suitable for mobile applications. Now, working fluid is a mixture of air and fuel in case of internal combustion engine, but in case of external combustion engine, working fluid is a mixture of working fluid is a steam. It is steam, just like in thermal power plant. Now, easier and quick starting of engine is possible in case of internal combustion engine, but external combustion engine is difficult to start. It requires more time to start it. Now, examples of internal combustion engine and external combustion engines. Internal combustion engines are those in which combustion of fuel takes place. External combustion engine are those in which combustion of fuel takes place outside the engine, but in IC engine combustion takes place within the engine. So IC engine, DC engines are of two types. Open cycle example of internal combustion engine. So recently you have studied about this gas turbine power plant. So if you recognize open cycle gas turbine comes under the category of internal combustion engine because it is having a compressor, there is a combustion chamber where fuel addition takes place and combustion takes place within the system, and that combustible product passes through the nozzle. Expansion of the combustible product takes place in the nozzle. So that's why it comes in the category of internal combustion engine. Then it is rotary Wankel engine. So in rotary type, open cycle gas turbine and rotary Wankel engine, these are the rotary internal combustion engine. But reciprocating engines are gasoline engine, SI engine and diesel engine. Petrol engine and diesel engine, these are reciprocating. Means internal combustion engines are two types on the basis of rotation. One is rotary engine and another one is known as reciprocating engine. So you are using motorcycle, bikes. So in all this, reciprocating type of engine is used. Some example of external combustion engines are rotary engine, steam turbine, closed cycle gas turbine, and reciprocating engines are steam engine, steel engine. So in case of steam engine, if you recognize, there is a steam boiler where heat supply takes place and combustion of fuel takes place outside the system. And the working fluid is a steam, not the combustible product. That's why it is known as external combustion engine. Now, this diagram, this animation shows the working of 4-stroke spark ignition engine. Okay. So it is visible to everyone. हेलो, यस सर, दिख रहा है ना? हाँ, ये देखिए कि 4 सिलेंडर इंजन कैसे काम करता है, उसका ये जो एनिमेशन है, ठीक है। तो एक इंजन में क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। ये जो बेसिक कंपोनेंट जो दिख रहा है, ये अपन इसको बोलते हैं कि क्रैंक, इसको बोलते हैं कि ये नीचे वाला हिस्सा इस टाइप से राउंड साइड पे दिख रहा है, वो क्रैंक केस है, ठीक है। इसके अंदर में जो सिलेंडर है, ये जो पोर्शन हमारा सिलेंडर दिख रहा है, इसमें पिस्टन, मूविंग कंपोनेंट इज द पिस्टन, ठीक है। और ये पिस्टन में रिंग भी लगा रहता है और ये कनेक्टिंग रॉड से पिस्टन जुड़ा हुआ है, दैट इज नोन एज गजन पिन, एंड दिस सेंटर एलिमेंट इज नोन एज द क्रैंकशाफ्ट। तो इंजन में हमको जो आउटपुट मिलता है, फ्रॉम वेयर वी गेट द आउटपुट, फ्रॉम द क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। दिस इज वन इज द इनलेट वाल्व एंड दिस इज एग्जॉस्ट वाल्व, एंड इन केस ऑफ दिस इज अ पेट्रोल इंजन, सो दिस एलिमेंट इज द स्पार्क प्लग। इसमें जो स्पार्क प्लग दिख रहा है, एक मिनट में पॉइंटर ले लेता हूँ, है ना, पॉइंटर ऑप्शन, ओके। सो अरे okay, so this one is inlet valve and this one is the exhaust valve, ठीक है। And these valves are opening and closing of the valve takes place with the help of valve mechanism. Since it is a 4-stroke engine, so valve mechanism is used, and this element is known as the, ये जो दिख रहा है ये क्या है, हमारा स्पार्क प्लग है। So that's why it is known as ऐसा इंजन है, ऑब्वियसली इट इज ऐसा इंजन, ठीक है ना। ये वाला हिस्सा हमारा, ये जो दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो दिख रहा है, ये हमारा सिलेंडर है और पिस्टन का मूवमेंट यहाँ से, इसको अपन बोलेंगे टॉप डेड सेंटर बोलेंगे इसको, टी और डी और सी के नाम से बोल सकते हैं। ये वाला पोर्शन का अपन बोलेंगे, इसको अपन बोल सकते हैं, ये हो गया बी और ये डी हो गया और सी, टॉप डेड सेंटर बीडीसी। सो द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन टेक्स प्लेस फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी और बीडीसी टू टीडीसी, ठीक है। तो ये इसके एनिमेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक एक करके धीरे धीरे इसके बारे में और अपन डिटेल में समझाएंगे। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि ये पिस्टन जब टीडीसी पे रहता है,
टीडीसी से जब बीडीसी की ओर जाता है थ्योरेटिकल केस में, तो ये जो इनलेट वाल्व खुल जाता है और यहाँ से होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ पेट्रोल प्लस एयर है ना, पेट्रोल प्लस एयर का जो मिक्सचर है ये सक्शन स्ट्रोक में इंजन के सिलेंडर के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक इन केस ऑफ स्पार्क इग्निशन इंजन द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर एंटर्स इनसाइड द सिस्टम, ठीक है। इनलेट वाल्व रिमेन्स ओपन। आफ्टर देन पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी की ओर जाएगा, यहाँ जैसे पहुंचता है से इनलेट वाल्व ही बंद हो जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व दोनों वाल्व बंद रहते हैं एंड पिस्टन मूव्स फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। पिस्टन का मूवमेंट ऊपर की ओर इस टाइप से होता है। सो द कंप्रेशन ऑफ दिस चार्ज टेक्स प्लेस एंड डिपेंडिंग ऑन द कंप्रेशन रेशियो द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द चार्ज इंक्रीजेस। तो जैसे आप टीडीसी पे जैसे आता है देन स्पार्किंग टेक्स प्लेस, यहाँ से स्पार्क प्लग के माध्यम से स्पार्किंग होता है और ये जो इसमें कंबस्टिबल पार्ट होता है वो जलना चालू करता है। So during combustion, both valve remains closed and high temperature pressure gas is produced that impose force on the piston. Piston के ऊपर में force लगता है and piston moves down. So that is known as power stroke. और आफ्टर देन पिस्टन बीडीसी की ओर पहुंच जाता है पावर स्ट्रोक में नीचे। उसके बाद फिर जैसे बीडीसी में पहुंचता है हमारा जो एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है और उसके बाद फिर पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है और जली हुई गैसेस यहाँ से बाहर निकल जाता है और उसके बाद फिर ये वाल्व बंद हो जाता है, फिर इनलेट खुल जाता है और ये नेक्स्ट साइकिल के लिए इंजन तैयार रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब एनिमेशन में एक बार और ध्यान से आप देख सकते हैं। आप देखिए ध्यान से देखेंगे ये एग्जॉस्ट सक्शन हो गया, कंप्रेशन, अच्छा ये इनलेट वाला हो जाएगा, ये वाला हमारा है ना, ये पावर मिला और ये एग्जॉस्ट वाल्व खुल गया। सो दिस इज 4 नंबर इज एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है ना। अब ये देखिए बंद हो गया, ये सक्शन हो गया, दिस इज सक्शन, यहाँ से सक्शन हो रहा है, ये इनलेट वाल्व हो गया हमारा, ठीक है, सक हो गया। अपने दिन वो दोनों बंद है, कंप्रेस हो रहा है, देखिए ध्यान से। एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्पार्किंग, पावर मिला, ठीक है। और उसके बाद ये एग्जॉस्ट वाल्व खुल गया, अब यहाँ से जली हुई गैसेस बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 स्ट्रोक इंजन वर्क करता है। 4 स्ट्रोक इंजन इसलिए बोलते हैं कि चारों प्रोसेस के लिए देयर आर 4 प्रोसेस है ना। फर्स्ट वन इज नोन एज सक्शन, सेकंड वन इज नोन एज कंप्रेशन, थर्ड वन इज नोन एज पावर स्ट्रोक एंड फोर्थ वन इज नोन एज एग्जॉस्ट स्ट्रोक। सो इसमें जो क्रैंक का जो रोटेशन रहता है 180 डिग्री, जैसे अपन इसको अपन डायग्राम के रूप में अपन ऐसा करके ड्रा करेंगे तो यहाँ से जैसे यहाँ से चालू हुआ तो ये टीडीसी से बीडीसी को जा रहा है, यहाँ से ले करके यहाँ सॉरी ये जो हो गया यहाँ से सक्शन हो जाएगा, ऐसा करके हाफ सर्कल ये सक्शन हो गया, मीन्स 180 डिग्री रोटेशन आप दिख रहे हैं। टीडीसी ये है हमारा टॉप डेड सेंटर और ये है हमारा बॉटम डेड सेंटर। तो व्हेन पिस्टन मूव्स फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी इनलेट वाल्व रिमेन्स ओपन एंड 180 डिग्री रोटेशन आप दिख रहे हैं, दिस रिमेन्स ओपन, ठीक है। आफ्टर देन बोथ वाल्व रिमेन्स क्लोज। सो बीडीसी से अब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी को जाए तो यहाँ से लेकर के हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ तक मिलेगा। एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्पार्किंग हो जाएगा। फिर पावर कहाँ से मिलेगा, 180 डिग्री रोटेशन पे पावर मिलेगा, मतलब यहाँ से पावर मिलना चालू होता है। हेलो, आई थिंक दैट देयर इज सम नेट इशू। स्लाइड दिख रहा है कि नहीं? हेलो, नो सर। स्लाइड इज नॉट विजिबल नहीं ना? दिख रहा है सर। अच्छा, थोड़ा सा ना कुछ इंटरनेट में इशू हो गया। ये एनिमेशन दिख रहा था, पहले दिख रहा था ना? यस सर। पहले दिख रहा था ना? ओके, जस्ट आई एम अगेन शेयरिंग इट, नो प्रॉब्लम। आई थिंक दैट नेट इशू के कारण थोड़ा सा कुछ दिक्कत। अब देखा? यस सर। नाउ इट इज विजिबल ना? ठीक है। यस सर। सो इस डायग्राम में एनिमेशन में किसी को किसी प्रकार के कोई डाउट है? नो एनी सर। क्वेश्चन फ्रॉम दिस? नो ना? यस सर। ओके, ऑल कंपोनेंट्स आर क्लियर, ठीक है। तो इंजन में हमको इंजन में जो पावर हमको आउटपुट मिलता है वो कहाँ से मिलता है? क्रैंक शाफ्ट से मिलता है। ये वाला जो सेंटर वाला एलिमेंट है ना, ये क्रैंक शाफ्ट रहता है, ये कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग रॉड का 2 एंड होता है, एक बिगर एंड रहता है क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा रहता है एंड दिस इज द स्मॉलर एंड इज कनेक्टेड विद द पिस्टन। और पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के बीच में जो ज्वाइंट रहता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ द गजन पिन लगा रहता है, ठीक है। और इसको अपन इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व, और ये जो जिस पाइप से जो चार्ज अंदर आता है दैट इज नोन एज इनलेट मैनिफोल्ड के नाम से। इनलेट मैनिफोल्ड होगा और इसको बोलेंगे अपन एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। मैनिफोल्ड मतलब जहां से ये आउटलेट होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। और 2 स्ट्रोक इंजन वगैरह छोटे छोटे इंजन में मोटरसाइकिल वगैरह में कूलिंग के लिए यहाँ पे फिन्स जो लगा रहता है, इस टाइप से आप लोग देखे होंगे, है ना।
और बड़े बड़े जो इंजन है कार या बस के हैं तो उसमें क्या लगा रहता है कि वाटर कूलिंग सिस्टम रहती है। इस टाइप से जो फिन्स प्रोवाइड करते हैं दिस इज फॉर कूलिंग पर्पस के लिए इसमें फिन्स लगा रहता है। अब ये जो वाल्व मैकेनिज्म को ऑपरेट करने के लिए इसको पावर कहाँ से मिलता है कि ये जो क्रैंक फॉलोअर मैकेनिज्म लगा रहता है, क्रैंक शाफ्ट से ना एक छोटा सा एक और गियर लगा रहता है और वो ये जो वाल्व को ऑपरेट करता है। इस टाइप से फोर स्ट्रोक इंजन वर्क करता है। So in case of four stroke engine and theoretical engine, inlet valve opens when piston is at TDC, inlet valve closes when piston reaches at BDC. After that, exhaust valve open when piston is at BDC and exhaust valve closes when piston is at TDC. तो इस प्रकार से theoretical cycle को represent करता है। तो जब हम actual valve timing diagram के बारे में जब स्टडी करेंगे तो इसको फिर से मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट अस मूव। ये क्या शो कर रहा है? हेलो, ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है आप बता सकते हैं? हेलो, नहीं इसे थोड़ा सा कुछ नेट का इशू हो रहा है। जस्ट 1 मिनट ना। सो दिस एनिमेशन इज विजिबल? हेलो, Yes, sir. ये दिख रहा है? ये वो कितना स्ट्रोक इंजन है? 2 stroke. हाँ, 2 स्ट्रोक इंजन है। वेरी गुड, वेरी नाइस। सो दिस इज द एनिमेशन ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन। तो 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन है बेसिकली क्या बेसिक डिफरेंस है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये भी पेट्रोल इंजन है कि डीजल इंजन? Petrol engine. पेट्रोल इंजन। कैसे पता चला? इसमें स्पार्क प्लग लगा है ना। गुड गुड। Yes, sir. हाँ, ये जो दिख रहा है ना, ये जो फिन्स लगा हुआ है कूलिंग के लिए है। दिस इज एयर कूल्ड इंजन। ये टॉप में स्पार्क प्लग लगा हुआ है। ठीक है, और ये नीचे वाला पोर्शन ये जो राउंड शेप का दिख रहा है ये जो है क्रैंक केस है और इसमें जो क्रैंक शाफ्ट रोटेट कर रहा है। दिस एलिमेंट इज कनेक्टिंग रॉड कनेक्टेड टू पिस्टन। इसमें ध्यान से देखिए कि इसमें वाल्व मैकेनिज्म नहीं है। नो वाल्व मैकेनिज्म इज यूज्ड इन केस ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, इसमें वाल्व मैकेनिज्म की जगह पे इसमें जो वाल्व की जगह पे पोर्ट रहता है। पोर्ट मीन सिंपल ओपनिंग है। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये स्लॉट बना हुआ है, यहाँ से जो चार्ज ऐसा करके जा रहा है यहाँ से निकल जा रहा है, इसको पोर्ट बोलेंगे। ये भी पोर्ट कहलाता है, यहाँ भी पोर्ट है। ठीक है, तो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्ट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द मोशन ऑफ द पिस्टन। द सरफेस ऑफ द पिस्टन कवर्स और अनकवर्स द पोर्ट्स। ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन में। 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व मैकेनिज्म लगा रहता है इसलिए थोड़ा सा हैवी एंड बल्कि भी हो जाता है। बट इन केस ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन देयर इज नो एनी वाल्व मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें कोई वाल्व मैकेनिज्म नहीं लगा रहता। ठीक है, इसमें क्या रहता है सिंपली पोर्ट्स आर देयर। अब पोर्ट्स को ओपन और क्लोज कैसे होगा? पिस्टन का जो सरफेस है जैसे यहाँ पे कवर हो गया फिर अनकवर किया फिर कवर हो गया फिर अनकवर किया, तो कवर और अनकवर होने से चार्ज अंदर जाएगा, कंबशन हो जाएगा और कंबसिबल प्रोडक्ट यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए कि ये वाला इनलेट पोर्ट है, यहाँ से जो चार्ज अंदर जा रहा है सो दिस इज नोन एज इनलेट पोर्ट। और जली हुई गैस बाहर निकल रही है दिस एलिमेंट दिस इज नोन एज एग्जॉस्ट पोर्ट। तो इसमें ध्यान से देखेंगे सक्शन अब किधर से हो रहा है। तो 2 स्ट्रोक इंजन में ऐसा है कि यहाँ पे जो दिख रहा है कि ये जो एलिमेंट है जैसे पिस्टन ऊपर की ओर मूव करता है तो यहाँ सक्शन क्रिएट होता है। तो जो चार्ज है फ्यूल और एयर का मिक्सचर ये नीचे साइड यहाँ से फ्यूल एयर का मिक्सचर क्रैंक केस में सबसे पहले जाता है। ठीक है, ओह चार्ज कहाँ पे जाएगा? ये क्रैंक केस से पहले गया। ठीक है, उसके बाद क्रैंक केस से होते हुए इनलेट पोर्ट के माध्यम से फिर सक्शन में ये कंबसन चेंबर में यहाँ सक हो रहा है। ठीक है ना, तो सक्शन हो रहा है मतलब कि थोड़ी देर तक सक्शन हो रहा है उसके बाद फिर साइमल्टेनियसली कंप्रेशन भी हो रहा है। तो एक ही स्ट्रोक में सक्शन और कंप्रेशन कंप्लीट होता है। एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। हाँ बोलिए। हेलो हेलो, कुछ बोल रहे थे आप? कुछ बोल रहे थे ना आप लोग? एनी क्वेश्चन? इसमें क्या होता है कि ये जो 2 स्ट्रोक इंजन है इसमें सक्शन सक्शन देखिए चार्ज यहाँ से गया जैसे पिस्टन नीचे आता है, नीचे आने से ये वाला पोर्शन अनकवर होता है तो चार्ज तुरंत अंदर की ओर चला जाता है।
ठीक है ना। उसका फिर पिस्टन जैसे ऊपर जाता है उसी चार्ज को कंप्रेस करता है। सक्शन एंड कंप्रेशन टेक्स प्लेस इन द सिंगल स्ट्रोक। पिस्टन जब ऊपर की ओर आ रहा है तो सक्शन कंप्रेशन हो जाता है, और उसके बाद नीचे आता है तो उस समय पावर स्ट्रोक मिलता है, और थोड़ी दूर और नीचे आने से एक छाछ कैसे यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है। इन केस ऑफ टू स्ट्रोक इंजन, सक्शन और कंप्रेशन एक ही स्ट्रोक में होता है, पावर और एग्जॉस्ट दूसरे स्ट्रोक में होता है। तो दो स्ट्रोक में चारों प्रोसेस कवर हो जाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टू स्ट्रोक इंजन। तो आप लोग क्या करेंगे कि इसका नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। और इसमें बेसिक चीज ये है कि चार्ज, ये देखिए सबसे पहले इसमें क्रैंक केस में जाता है, क्रैंक केस चार्ज से भरा रहता है, और ये स्लाइड में जो ये पोर्ट बना हुआ है इसके माध्यम से ये सक्शन होकर के कंबशन चेंबर के अंदर जाता है। ठीक है। इसमें सक्शन और कंप्रेशन एक ही स्ट्रोक में हुआ, मतलब कि ऊपर के स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी को जब जा रहा है, when piston moves up then suction and compression takes place, and piston moves down power and exhaust stroke takes place। इसमें देखिए कि पावर कहां से कहां तक मिलेगा। पिस्टन यहाँ कंबशन हुआ तो पावर यहाँ से यहाँ तक मिला, और जैसे पिस्टन नीचे जाता है ये वाला एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाता है, यहाँ से चली हुई गैसेस बाहर निकल जा रहा है। ठीक है। ये टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन के इसमें ये है, समझिए बेसिक डिफरेंस है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसके जो एनिमेशन से काफी कुछ आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में आइडिया हो जाएगा। So whenever you have to draw diagram and explain it, you have to draw proportionate diagram। ठीक है। आगे इंटरनल कंबशन इंजन का बता ही सर? दिया था। हेलो। हाँ सर, वो थोड़ा एक स्लाइड थोड़ा सा पीछे करेंगे हाँ हाँ हाँ, बोलिए। सर। तो जब वो क्रैंक घुमा के उसको लेके जाएगा चार्ज को, हाँ तो पूरा चार्ज तो शायद नहीं जा पाएगा सर, कुछ तो वापस भी घूम जाएगा। हाँ, इसमें क्या होता है, ये जो क्रैंक केस है ना, नीचे क्रैंक जहाँ कनेक्टिंग राइड घूम रहा है ना, ये चार्ज से भरा रहता है। ठीक है। पूरा नीचे चार्ज भरा हुआ, इसमें से जैसे पिस्टन नीचे की ओर, जैसे ये वाला जो पोर्ट ये खुलता है, इसको बोलता है इनलेट पोर्ट, खुलेगा तो थोड़ा सा चार्ज ऊपर चला जाता है। ठीक है। कुछ ही समय के लिए जाता है, फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड के लिए जाता है, तब तक फिर पिस्टन ऊपर जैसे उड़ता है ये वाला बंद हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला पोर्ट बंद हो जाता है, और ये एग्जॉस्ट दोनों जैसे बंद होता है फिर कंप्रेशन चालू हो जाता है। यहाँ से देखिए आप इसका ओपनिंग को देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ये इनलेट हो गया और एग्जॉस्ट के बीच में। लेकिन इसमें ये रहता है कि कुछ चार्ज, देयर इज चांसेस दैट सम चार्ज में कम आउट थ्रू द एग्जॉस्ट पोर्ट। ये लास्ट भी होता है टू स्ट्रोक इंजन, इसलिए टू स्ट्रोक की जो एफिशिएंसी है ना, फोर स्ट्रोक इंजन के कंपैरिजन में कम है। ठीक है। यस सर। लेकिन ये फ्रैक्शन Yes, ऑफ सेकंड में होता है ना, सब चीज बहुत ही कम रहता है, 0.02 सेकंड, 3 सेकंड समथिंग, आप कैलकुलेट करके देखना उसका, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आप देख इसका जो पोर्ट का जो पोजीशन को भी देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, ध्यान से आप देखेंगे कि इनलेट पोर्ट ओपन होता है, उसके थोड़ी देर बाद एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होता है। तो जैसे ही यहाँ से इनलेट पोर्ट ओपन हुआ, चार्ज अंदर गया, फिर पिस्टन ऊपर की ओर जा रहा है, इनलेट पोर्ट एग्जॉस्ट दोनों बंद हो जाता है पिस्टन के सरफेस के कारण, तो फिर ये कंप्रेस हो जाता है, थोड़ी देर कंप्रेस होता है, फिर यहाँ स्पार्किंग होता है, फिर पावर मिलता है। जैसे पावर मिलता है तो एग्जॉस्ट पोर्ट जैसे खुलता है, यहाँ से जली हुई गैसेस बाहर निकल रहा है। तो मतलब कुछ जिसको अपन बोलते हैं कि पीरियड होता रहता है जिसमें दोनों पोर्ट ओपन रहता है। ये जो इनलेट पोर्ट भी ओपन रहे कुछ देर के लिए और एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन रहे कुछ देर के लिए, दैट इज नोन एज डुअल पीरियड। ठीक है। तो इसको अपन बहुत ही कम रखते हैं ताकि चार्ज यहाँ से बाहर ना जाए। ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये जो टू स्ट्रोक इंजन काम करता है और फोर स्ट्रोक इंजन काम करता है। ठीक है। तो एक बार और देख लीजिए आप लोग ध्यान से। ठीक है। तो काफी कुछ आपका वो क्लियर भी हो जाएगा। इसलिए टू स्ट्रोक इंजन क्या है कि अपन उसको ये कर सकते हैं कि टू स्ट्रोक इंजन में लॉसेस थोड़ा सा ज्यादा होता है ना, मोर लॉसेस टेक्स प्लेस इन टू स्ट्रोक इंजन यस सर। कंपेयर टू फोर स्ट्रोक इंजन। और किसी को कोई क्वेश्चन? आप लोग पूछते जाइए, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ना उतने ज्यादा समझ में आएगा, है ना। सर टू स्ट्रोक इंजन का कहाँ यूजेस होता है? ये स्कूटी वगैरह बाइक वाइक में छोटे मोटे इसमें, है ना। हेलो। यस सर। जो स्कूटी वगैरह देखें, स्कूटी
स्कूटी हो गया, Yes, sir. ये इसमें अपन स्कूटी वगैरह में छोटे जो रहते हैं, लूना वगैरह स्कूटी, इस टाइप के इसमें 2 स्ट्रोक इंजन का यूज करते हैं। और 4 स्ट्रोक इंजन का बड़े गाड़ी में यूज होता है, जैसे मोटरसाइकिल वगैरह में है, कार में है, बस में है, इस सब में 4 स्ट्रोक इंजन यूज होता है। सो हेलो, और जैसे अब इसमें 2 स्ट्रोक लाइट वेट और हल्के फुल्के गाड़ी के लिए है। और 4 स्ट्रोक इंजन में भी, जैसे कार में, किसी कार में 4 सिलेंडर इंजन यूज करते हैं, और ट्रक बस वगैरह में 6 सिलेंडर 8 सिलेंडर भी यूज करते हैं, तो नंबर ऑफ सिलेंडर को ही बढ़ा देते हैं। 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक मल्टी सिलेंडर इंजन, तो बड़े बड़े जो गाड़ियां हैं ना, 4 स्ट्रोक मल्टी सिलेंडर इंजन यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। तो पहले इसमें मैंने बताया था कि इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन के बीच में डिफरेंस। जैसे यहाँ पे जो ओपन साइकिल गैस टरबाइन आप लोग पढ़ भी चुके हैं, फ्रेश एयर कंप्रेसर से जा रहा है, कंप्रेस होने के बाद ये कंबशन चेंबर में जाता है। यहाँ फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो जलता है, और ये नोजल के माध्यम से टरबाइन में आ जाके मतलब कि टरबाइन पावर प्रोड्यूस करता है। एक्सपांशन इसका नोजल में होता है, और हाई वेलोसिटी जेट टरबाइन को घुमाता है। ये देखिए यहाँ पे कंबस्टिबल प्रोडक्ट क्या है, फ्यूल एयर का मिक्सचर का जो जला हुआ प्रोडक्ट है, ये वर्किंग फ्लूइड है, इसलिए इसको इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं। लेकिन थर्मल पावर प्लांट में आप देखिए, ये बॉयलर है, तो यहाँ पे फ्यूल वगैरह जो बर्निंग हो रहा है, ये आउटसाइड हो रहा है, इनडायरेक्ट रूप से हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, और इसमें वर्किंग फ्लूइड स्टीम है, कंबस्टिबल प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, नाउ लेट अस क्लासिफाई IC engines. So we will discuss in detail in this subject about the internal combustion engine. So internal combustion engine are classified on different ways, just like on the basis of the fuel. It is known as petrol engine, a diesel engine, a gas engine, or biofuel engine. So these are the basic engines used on the different basis of the different fuels. Petrol engine, petrol is used as fuel. In case of diesel engine, diesel is used as a fuel, and gas engine, gas is used. Gaseous fuels are used. Okay. Now, on the basis of nature of thermodynamic cycle, so on the basis of nature of thermodynamic cycle, it is Otto cycle, it is diesel cycle, or it could be dual or mixed cycle. ठीक है, ये सेकंड क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा, थर्ड नंबर इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रोक, IC engines are classified as 2 stroke engine or 4 stroke engines. On the basis of method of ignition, it is known as SI engine and CI engines. SI engine is known as spark ignition engine, or it is also known as petrol engine, and CI engine is known as compression ignition engine. On the basis of method of cooling, इंजन could be air cooled engine or water cooled engine. छोटे छोटे इंजिन वगैरह में, मोटरसाइकिल वगैरह है, स्कूटी वगैरह, इसमें एयर कूलिंग सिस्टम यूज होता है, फिंस लगा रहता है इंजन के ऊपर में, एंड बड़े जो 4 व्हीलर्स वगैरह है, इसमें वाटर कूलिंग सिस्टम लगा रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ एन इंजन, लो स्पीड इंजन, मीडियम स्पीड इंजन, हाई स्पीड इंजन। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिलेंडर्स, सिंगल सिलेंडर, मल्टीपल सिलेंडर। The basis of position of the cylinder, inline engine, a post piston engine, a post cylinder engine, V engine, radial engine. So these are the different classification of IC engines. अब इस डायग्राम आप देखिए, इनलाइन इंजन में देखिए कि एक लाइन से है ना, 1 2 3 4 सिलेंडर इंजन एक लाइन से लगा हुआ है, कनेक्टेड टू कॉमन क्रैंकशाफ्ट, दिस इज नोन एज इनलाइन इंजन। वी इंजन में आप देखेंगे तो वी शेप में एक सिलेंडर का पोजीशन इधर है, और 60 डिग्री के अंतर में दूसरा सिलेंडर है, इंक्लाइन टाइप का रहता है, वी शेप में है, इसलिए इसको वी इंजन बोलते हैं। अपोस्ट पिस्टन इंजन, अपोस्ट पिस्टन इंजन में पिस्टन अपोजिट डायरेक्शन में, एक पिस्टन इधर लगा है, एक पिस्टन इधर है। ठीक है, तो अलग अलग बेसिक इसका क्लासिफाई किया गया, अलग अलग इन्वेंटर लोगों ने इसको डिजाइन किया था। ठीक है, नाउ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर आर सो मेनी कंपोनेंट्स, जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं इसी प्रकार से। जैसे ये वाला हो गया हमारा, ये कैम शाफ्ट हो गया, ये हो गया कैम हो गया, ये मिक्सचर फ्यूल एयर का मिक्सचर, ये पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग है, मींस पेट्रोल इंजन है तो फ्यूल एयर का मिक्सचर यहाँ से अंदर होता है। ये इनटेक वाल्व कहलाता है, दिस इज कंबशन स्पेस, और इट इज आल्सो नोन एज क्लियरेंस वाल्व, दिस इज नोन एज सिलेंडर ब्लॉक, दिस इज कनेक्टिंग रॉड, ये हो गया हमारा क्रैंक शाफ्ट हो गया, यहीं से आउटपुट मिलता है, दिस इज क्रैंक केस,
ये जो स्ट्रक्चर बना रहता है स्टेशनरी, दिस इज क्रैंकेस, दिस एलिमेंट इज पिस्टन, स्पिन इज नोन एज गजन पिन, दिस इज ये जो कलरफुल दिख रहा है ये कूलिंग के लिए होता है, वाटर कूलिंग जैकेट टाइप का लगा रहता है इसमें, वो कूलिंग के लिए कूलिंग वाटर। देन दिस अपर पर्सन इज नोन एज सिलेंडर हेड, तो ये देखिए सिलेंडर हेड है, इसको खोल सकते हैं, ये ऊपर उठ जाता है ना, यहाँ से नट बोल्ट के माध्यम से टाइट रहता है, जब गैस्केट लगा देते हैं तो ये सिलेंडर हेड कहलाता है और नीचे वाला सिलेंडर ठीक है। देन दिस इज एग्जॉस्ट वाल्व एंड स्प्रिंग, वाल्व स्प्रिंग, तो इस प्रकार से बहुत सारे इंजीनियरिंग का कंपोनेंट होता है, वही चीजें इसमें भी दिखाया गया है। ठीक है, तो जब भी इंजन के बारे में आप लिखेंगे नीट एंड क्लीन डायग्राम आपके प्रैक्टिकल फाइल के लिए आप लिखेंगे बनाएंगे, तो ये सब चीज को आप बारीकी से लेवल डायग्राम आपको बनाना है और प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। ना इंजन का जो पार्ट्स वगैरह जो कौन कौन से कंपोनेंट का बना था, जैसे सिलेंडर है कास्ट आयरन एलॉय स्टील कास्टिंग प्रोसेस से बनता है, सिलेंडर हेड कास्ट आयरन एल्यूमिनियम कास्टिंग फोर्जिंग, पिस्टन कास्ट आयरन एल्यूमिनियम कास्टिंग फोर्जिंग से बनता है, पिस्टन रिंग सिलिकॉन कास्ट आयरन कास्टिंग मेथड से बनता है, गजन पिन स्टील का है फोर्जिंग मेथड, हॉल्स स्पेशल स्टील एलॉय फोर्जिंग मेथड, कनेक्टिंग रॉड स्टील फोर्जिंग मेथड से, क्रैंक्स ऑफ एलॉय स्टील फोर्जिंग मेथड, क्रैंक केस कास्ट आयरन स्टील कास्टिंग, सिलेंडर लाइनर कास्ट आयरन निकल एलॉय कास्टिंग, बियरिंग्स व्हाइट मेटल लेड ब्रॉन्ज कास्टिंग। ठीक है, तो ये बहुत सारे अलग अलग मटेरियल यूज होता है, अलग अलग प्रोसेस ये बनता है। ठीक है, नाउ एप्लीकेशंस ऑफ आईसी इंजन्स, नाउ रोड व्हीकल्स के लिए मोपेड्स हो गया, स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्मॉल कार, लार्ज कार, लॉन मूवर्स के लिए अलग अलग कैपेसिटी का इसमें दिखाया हुआ है, किसमें 2 स्ट्रोक इंजन लगता है, किसी में 4 स्ट्रोक इंजन लगता है। ठीक है, ये सब इसमें क्या है, लोकोमोटिव्स हो गया, स्मॉल एयरक्राफ्ट में हेलीकॉप्टर्स एयरप्लेन्स हो गया, मेराइन एप्लीकेशंस हो गया, मोटर बोट्स शिप्स वगैरह में। ठीक है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, ठीक है, आफ्टर देन ऑफ रोड व्हीकल्स में भी यूज होता है। सो दीज आर द सर्टेन applications of IC engines. ठीक है, now comparison between SI and CI engine, स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन के बीच में यदि कंपेयर करेंगे, so on the basis of cycle, if you compare this SI engine works on Otto cycle and the heat addition takes place at constant volume, so it is known as constant volume heat addition cycle. And diesel engine, CI engine is compression ignition engine works on diesel cycle and constant pressure heat addition takes place. The fuel used is gasoline, a highly volatile fuel is used in case of petrol engine. Self ignition temperature of petrol is higher than compared to the diesel. Diesel oil, a non-volatile fuel, is used in case of CI engine. Self ignition temperature T is comparatively low. Now, introduction of fuel. Gaseous mixture of fuel and air is introduced during suction stroke in case of SI engine, and carburetor is used and ignition system needs, ignition system का जरूरत पड़ता है ऐसा इंजन में, और कभी कभी गैसोलीन इंजेक्शन सिस्टम भी यूज होता है, but fuel is injected directly into the combustion chamber at high pressure at the end of the compression stroke. A fuel pump and injectors are necessary in case of CI engine. तो CI engine में compression stroke में सक्शन में एयर सक होता है, एयर को कंप्रेस करते हैं, and at the end of the compression फ्यूल का इंजेक्शन होता है, डीजल फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं तो ऑटो इग्नाइट हो जाता है। Now load control, throttle control, the quantity of fuel air mixture is control. Governing system is quantity governing system होता है पेट्रोल इंजन में, और क्वालिटी गवर्निंग सिस्टम होता है डीजल इंजन में। Weight lighter due to comparatively low peak pressure. डीजल इंजन हैवी एंड बल्की होता है। ठीक है, सो इग्निशन रिक्वायर्स एन इग्निशन सिस्टम, जैसे मैंने आपको बोला इसमें CI इंजन में इग्निशन सिस्टम का जरूरत नहीं पड़ता है। कंप्रेसर रेशियो 6 to 10 के आसपास रहता है। अपर लिमिट इज फिक्स्ड बाय एंटीना क्वालिटी ऑफ द फ्यूल, and compression ratio of CI engine 16 to 20. Upper limit is limited by weight increase of the engine. Now speed, due to lightweight and also due to homogeneous combustion, they are high speed engines. ठीक है, क्योंकि फ्यूल और एयर का मिक्सचर पहले बन जाता है, उसको सक करते हैं, इसलिए इसमें जो कंबसन होता है इट इज नोन एज होमोजेनियस कंबसन। बट इन केस ऑफ डीजल इंजन में एयर कंप्रेस होता है, उसमें जैसे फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं तो प्रॉपर मिक्सचर मतलब होमोजेनियस नहीं रहता है, इसलिए इसमें हेट्रोजीनियस होता है। Thermal efficiency, because of low compression ratio, the maximum value of thermal efficiency that can be obtained is lower in case of SI engine compared to the diesel engine. So